प्रार्थना करेंगे। Nebros conte nibra kalera bare kalara bashike te raba les gande nibash ke to terila basiga dikhatila shkaton debrila. Thank you, Lord. Shake te vari bari bari kalara bashobra bari bari ba. O sori kalara bashako tore kata nebras koriala. Shoko tori kanda nabrasko de da kalara bashabara bare bare ba. Shebere katara basakro kalara bare ba. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, I surrender to you my mouth, my lips, my tongue, and my voice. प्रभु मेरी जुबान को, मेरे होठों को, मेरे विचारों को मैं आपका तुम्हें सौंप देता हूँ, so that the words that come out from your mouth may be utilized by these parts of me. कि जो कुछ शब्द मेरे मुख से निकले वो आपके नाम को महिमा दे, and that they may reach the hearts of everyone listening to this. और हर एक जो सुन रहा है वो उनके दिलों तक वो शब्द पहुँचे, And may it enlighten them, their hearts and their minds. कि वो उनके दिलों को, उनके विचारों को प्रकाशित करे। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। A few weeks back, I spoke about honor and humility. कुछ हफ्तों पहले मैंने नम्रता और आदर के विषय में बात की, So I'll just do a very quick, short 2-minute recap. और हम फिर से एक बार उसको रिकैप करेंगे। So one of the things I said is that the predecessor to honor is humility. तो उस समय मैंने कहा था कि आदर से पहले नम्रता होती है। So first comes humility, then comes honor. तो पहले नम्रता होती है, उसके बाद आदर आता है। So when you are humble, you get honored by God. तो जब आप नम्र होते हैं तब परमेश्वर आपका आदर करता है। I spoke about how honoring varies from people to people. और आदर कैसे मनुष्य से मनुष्य जो है अलग अलग मनुष्य के कैसे अलग अलग प्रकार का आदर होता है। We spoke about how the Pharisees tried to show their honor outwardly. और मैंने बताया कि फरीसी लोग कैसे बाहरी तौर से आदर को दिखाने का प्रयास करते थे। They would make their phylacteries broad and show that they honor God more. और वो ऐसे दिखाते थे कि उनके कामों के द्वारा दिखाते थे कि कैसे वो परमेश्वर का ज़्यादा आदर कर रहे हैं। But that was just an outward show. लेकिन वो केवल बाहरी तौर से था। From inside they were not honoring God. लेकिन अंदर से भीतर से वो परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। And then I spoke about how we need to honor God and how we also need to honor His people. और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे हमें परमेश्वर का आदर करना है और कैसे हमें परमेश्वर के लोगों का आदर करना है। Because Jesus gave us only 2 commandments. क्योंकि यीशु ने केवल हमें 2 आज्ञा दी है। Love God with all your heart, your mind and your soul. कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्रेम, सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से तू प्रेम कर। And love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्रेम कर। And I said that love translates to honor. और मैंने बताया था कि कैसे प्रेम जो है वो आपके आदर को दर्शाता है। So honor, the first place of honor goes to God. और पहला आदर का स्थान वो परमेश्वर को जाता है। And then God also wants us to honor one another. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे का आदर करें। So even in a marriage, the husband and wife should honor one another. और शादी में भी पति और पत्नी को एक दूसरे का आदर करना है। Because if you don't do that, then you're breaking the second law that Jesus gave. अगर हम एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं तो यीशु मसीह ने जो दूसरी आज्ञा दी है उसको हम तोड़ते हैं। Okay, so let's move to today's word. तो हम अब आज के वचन की ओर जाएंगे। So Brother Amish, when he was sharing the word for communion, he started with this verse. और जब भाई अमीश ने प्रभु भजन का वचन लिया तो उन्होंने इस वचन से शुरुआत की। That Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the word of the Lord. जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहता है।
So what is that word that comes from the mouth of the Lord? तो ये कौन सा वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा है? Rather the question should be, what is the value of the word that comes out from the mouth of God? लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की कीमत क्या है? So for that we'll go to Isaiah chapter 55 verse 11. तो हम वो जानने के लिए जाएंगे यशायाह 55 verse 11. Again a very familiar verse and sometimes we have familiarized it too much. तो हम जाएंगे यशायाह 55 उसका 11। तो हमने बहुत बार वचन पढ़ चुके हैं और हम बहुत फैमिलियर हो चुके हैं इसके साथ में, लेकिन हमने सच में इसका प्रकाशन नहीं देखा है। So the verse says that, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. यशायाह 55 उसका 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। What do you see in this verse? हम यहाँ इस वचन में क्या देखते हैं? Apart from the fact that we know that God's word helps us to prosper, हाँ, एक सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन हमें समृद्ध करने में हमारी सहायता करता है। but here you get to see, if you look at it from a different view, you get to see God honoring his word. लेकिन अगर हम दूसरा दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर उसके वचन का आदर करते हैं। That's why it will never return void. इसीलिए वो वचन उनके पास खाली हाथ वापस नहीं जाता। So imagine the father honoring the word. तो कल्पना कीजिए कि पिता वचन का आदर कर रहे हैं। What should be our position? तो हमने कितना ज्यादा उसके वचन का आदर करना चाहिए? We need to honor at least as much as God honors his word. तो हमें कम से कम जितना परमेश्वर उसके वचन का आदर करते हैं, हमें भी उतना ही परमेश्वर का कम से कम उतना ही परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। Because honoring is not difficult. क्योंकि आदर करना बहुत कठिन नहीं है। When we put our minds to it, when we meditate on the word, we are honoring the word. जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। But that's not all. We also need to apply it in our word. That completes the honor of his word. लेकिन केवल इतने तक सीमित नहीं रहना है, लेकिन जब हम उसको हमारे जीवन में लागू करते हैं तो हम पूरी साइकिल को पूरा करते हैं और परमेश्वर के वचन का पूरा आदर करते हैं। Let's go to Matthew verse 24, chapter 24. हम जाएंगे मत्ती उसका 24 and we'll go to verse 35. और हम जाएंगे वचन 35 पर। It says, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. मत्ती 24 उसका 35। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। This is the confidence that God has in his words. ये परमेश्वर का विश्वास है उसके वचन पर, That even heaven and earth can pass away, but my word will not pass away. कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा जो बोला हुआ वचन है वो कभी नहीं टलेगा। So it's very important for us to understand how much the Father honors the word. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कितना अपने वचन का आदर करते हैं। So there's the Father and there's the word. तो पिता है और वचन है। First I'll talk about the Father. तो मैं पहले पिता के विषय में बात करूंगा। So the point is that we are trying to understand what it means to honor the Father. तो हम पहले इस बारे में बात करेंगे कि पिता का आदर करने का मतलब क्या है। We'll go to Revelation chapter 4. हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय and we'll go to verse 11. 11 वचन पे जाएंगे। Verse 11 says, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय उसका 11वां वचन, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। We all know this very well that God has created the universe. तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। And that is one reason why we need to honor God. तो ये एक कारण है जिसके लिए हमको परमेश्वर का आदर करना है। And because the way He has created the universe,
और जिस प्रकार से परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, He is worthy to receive it और वो योग्य है उस आदर के, because they exist only because of Him. क्योंकि हम इस धरती पर इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो है. So definitely the Father is worthy of every honor that you give Him. तो पिता उस सारे आदर के योग्य है जो हम उसको देते हैं. And when we fail to give Him honor, और जब हम आदर नहीं देते, it's like we are dishonoring God, उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं. which is serious, ये बहुत गंभीर है, because we have to reflect on our every thought, word and action. क्योंकि हमको हमारे जो हर एक विचार है, हमारे जो हर एक काम है, उसके ऊपर हमको मनन करना चाहिए. That are we honoring God, कि हमें देखना चाहिए कि हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा क्या हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं. you may show that you are honoring God to people, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके कामों के द्वारा हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, but what about your thoughts? लेकिन आपके विचार कैसे हैं? What about the way you speak? आप किस तरह से बात करते हैं? So are you really honoring God in each and every one of those things? क्या आपके विचार के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा भी आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? It's very important that we reflect on these things each and every day of our lives. ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इन मामलों में हमको सोचना चाहिए कि हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या हम आदर कर रहे हैं क्या सच में. Because every day we get an opportunity to honor God. क्योंकि हर दिन हमें ये मौका मिलता है कि हम परमेश्वर का आदर करें. And are we doing it or not? That is the question we should ask ourselves at the end of every day. और दिन के अंत में हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हमको जो मौका मिला था परमेश्वर का आदर करने का, क्या हमने वो सच में किया या नहीं किया. God has revealed His love so intensely to us, परमेश्वर ने उसके प्रेम को इतने गहराई से हमके ऊपर प्रकट किया है. but most believers have received that love but have not thought about it and reflected about it to honor God because of that love. लेकिन बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सोचा नहीं है और उसको उतना आदर जो देना चाहिए था वो नहीं दिया. Let's go to 1 Corinthians. हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों We'll go to chapter 6. 6 अध्याय We'll read verse 19 and 20. 19 और 20. पहला कुरिन्थियों 6 19 और 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. आमेन. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you do not belong to yourself. आप खुद के नहीं हो, You were purchased. आपको खरीदा गया है. You are now belonging to God. आप अब परमेश्वर के हो. That's what this verse says. You were bought at a price. वचन कहता है कि आपको कीमत देकर, दाम देकर परमेश्वर ने खरीदा है. The price of the blood of Jesus. वो कीमत यीशु का लहू. You are no longer yourself. आप अभी खुद के नहीं हो, You belong to God. आप परमेश्वर के हो. Therefore you have to honor God. इसीलिए आपको परमेश्वर का आदर करना है. It's not like you have an option to honor God. ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन है कि आप परमेश्वर का आदर कर सकते हो या नहीं कर सकते. If Jesus shed His blood for your sake, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपने लहू को बहाया, then honor is due. तो उसको आदर देना बनता है. And we cannot neglect this honor. और हम इस जो आदर है उसको हम नकार नहीं सकते. So every moment of our lives we should be honoring God. और इसीलिए हमको हमारे जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर का आदर करना है. We need to glorify and honor God. That's what verse 19 says. और यही वचन 19 कहता है कि हमको परमेश्वर का आदर करना, उसकी महिमा करनी है. Because you are not your own. क्योंकि हम खुद के नहीं हैं. You were bought at a price, so glorify God in your body and in your spirit. हमें परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, इसीलिए अपनी आत्मा में और अपनी देह में परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा वचन कहता है. When you were born again, you got a new spirit.
जब हमारा नया जन्म हुआ तब हमें एक नया आत्मा मिला And that spirit enables you to honor God. और वो आत्मा हमें इनेबल करता है कि हम परमेश्वर का आदर करें। Before we were born again, हमारा नया जन्म होने से पहले we had the old man, हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व था which was not able to honor God. जो परमेश्वर का आदर नहीं कर सकता था। But something happened when you were born again, लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ तो कुछ तो हुआ and that through that you received faith. और उसके द्वारा हमको विश्वास मिला है। Now when you received faith, you have the power to believe in God's word. और जब हमें विश्वास मिला तब हमें सामर्थ्य मिली कि परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास कर सकते हैं। So now that you have the power to believe God's word, तो जब अब हमारे पास में वो विश्वास है कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, and we saw in Revelations 4:11 that you are worthy of honor, और हमने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 11वें वचन में देखा जहाँ कहता है कि परमेश्वर उस आदर के योग्य है, so we ought to honor God. तो इसीलिए हमें परमेश्वर का आदर करना है। And as I said, in this verse we saw just now that we do not belong to ourselves, but we belong to God. और जैसे हमने अभी पहला कुरिन्थियों में कि हम खुद के नहीं हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें खरीदा है, That's why it's not an option for us. इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। Every second of our lives we should be honoring God. इसलिए हर एक हमारे जीवन के हर एक सेकंड में हमको परमेश्वर का आदर करना है। Let's go to 1 Samuel हम जाएंगे पहला शमूएल chapter 2, 2 अध्याय and we'll go to verse 30. 30 वचन पे जाएंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय वचन 30। It says, "Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed." आमेन। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 30 वचन, इसीलिए इज़राइल के यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। So when we honor God, God also brings us honor. तो जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तब परमेश्वर हमारा आदर करता है। But if you have neglected honoring God, or see, nobody despises honoring God or despises God, but by not honoring God, it is equivalent to despising God. देखिए, कोई परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन जब हम परमेश्वर के आदर करने को तुच्छ जानते हैं उसका मतलब है कि हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। And that's why for those who do that, if they despise, then God lightly esteems them. और इसलिए जो ऐसा करता है, तो हमने वचन में पढ़ा कि वो परमेश्वर को जैसे तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वे छोटे समझे जाएंगे। In another translation, this says that if those who despise me will be destroyed. और दूसरे एक ट्रांसलेशन में ऐसा कहता है कि जो मुझे तुच्छ जानते हैं उनका नाश होगा। So if you don't want to be destroyed, then honor God every moment of your life. आमेन। अगर आपको चाहिए कि आपका नाश ना हो तो आपके जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर का आप आदर करें। Now so far whatever I have said may sound like condemnation. हो सकता है कि अभी तक हमने जो कुछ बात किया उससे आपको ऐसा लग रहा हो कि हम आप पर दोष लगा रहे हैं, But no, it's not condemnation, it's something that is due to the Father. लेकिन ये एक दोष लगाना नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर इसके योग्य है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। Because God has given us His grace. क्योंकि परमेश्वर ने उसने हमको उसका अनुग्रह दिया, And sometimes we take advantage of grace. तो हम क्या करते हैं कि उस अनुग्रह का हम फायदा उठाते हैं। We say that everything has been provided for me and I can do what I want. तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ मुझे मिल गई है उसके अनुग्रह के द्वारा, तो मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। We say that we have been forgiven, so even if I did something wrong, it's forgiven, it's on the cross. क्योंकि मुझे क्षमा मिल चुकी है, तो अब मैं कुछ भी करूँ मुझे वैसे भी क्षमा और पहले से मिल चुकी है क्रूस पर। But in doing that, if we are dishonoring God, then that's something serious. लेकिन ये सारा करने में अगर हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं तो बहुत गंभीर है ये। And that is why I brought this out, so that you understand that it's very serious that we honor God. इसलिए हमने अभी तक ये सारा चीज़ पढ़ा कि हम समझे कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का आदर करना। And we should not forget to honor God, because we have daily opportunities to do that.
और हमें भूलना नहीं है परमेश्वर का आदर करना रोज, क्योंकि रोज परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसका आदर करें. A simple example is when we come together for church, then are we honoring Him every moment we are in church? तो एक उदाहरण के लिए जब हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो हम इकट्ठा होने के बाद में हर एक क्षण में क्या हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? Or are we, when the worship is going on or when the word is going on, we are distracted, looking at one another, talking to one another? या फिर जब आराधना चल रही है या फिर वचन का प्रचार हो रहा है तो हम क्या हम विचलित है, इधर उधर हमारा ध्यान भटक रहा है, क्या हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं? Dear brothers and sisters, when we come here, we have to forget about ourselves. प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो हमें बाकी सारी चीज़ें भूल जाना है. Let's not look at what other people are wearing, what clothes they are wearing, how they are dressed up, how they look, but let's focus on God and Jesus. जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमके भूल जाना है कि हमारा जो भाई या बहन है वो कैसा दिख रहा है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन वो सारा चीज़ें भूल कर हमें परमेश्वर की ओर ध्यान को केंद्रित करना है. Even if you have come to church with a sickness or with some difficulty, forget your sickness, forget your difficulty. You can honor God by just putting all your attention on Him. आमीन. अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी या फिर दर्द को लेकर आप कलीसिया में आते हो, उसको भी आप भूल जाइए और आप परमेश्वर का आदर कीजिए. And your every action shows that you honor God. और आपका हर एक जो काम है जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर का आदर आप दे रहे हो या नहीं वो दिखाता है. Or you're not honoring. या वो दिखाता है कि आपके कामों के द्वारा आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. So it's important that we give our full attention, our whole mind, soul and body to God when we come to church. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो पूरे ध्यान से हम परमेश्वर का आदर करें. So when we honor God, we are benefited. और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हमारा ही फायदा होता है. Because God does not keep that honor due. He honors you through your honor of Him. वो हमको आदर देता है, जो आदर हमने पहले उसको दिया उसके द्वारा ही वो हमको आदर देता है. Now let's move to talking about the word. I said the Father and the Word, right? So we spoke about the Father. Now let's move to understanding about honoring the Word. तो हमने इसे शुरुआत में देखा कि पिता है और वचन है, तो हमने अभी पिता के विषय में देखा, अब हम जाएंगे वचन के विषय में. We'll go to Psalms chapter 138 हम जाएंगे भजन संहिता 138 and we'll read verse 2. और हम वचन पढ़ेंगे 2. It says, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. भजन संहिता 138 उसका 2. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. Now this prayer or this verse is addressed to the Father. तो ये जो वचन है जो हमने अभी पढ़ा वो पिता के लिए लिखा गया है. Okay, so David was talking to the Father. तो दाऊद जो है वो पिता से बात कर रहे थे. He was talking about how I will worship towards your holy temple and praise your name. तो यहाँ दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर जाकर मैं दंडवत करूंगा और तेरे नाम का स्तुति करूंगा. Now in the word we see that there are many names that are used to refer to the Father. और हम वचन में देखते हैं कि बहुत परमेश्वर को दर्शाने के लिए बहुत सारे नामों का उपयोग किया गया है. Like Elohim, Yahweh, जैसे याहवे, एलोहिम, okay, Rapha, राफा, शमा. So all these are different names for तो God. तो ये बहुत सारे नाम हैं जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. But the word says that you have magnified your word above your name. लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उसके नामों से ऊंचा स्थान उसके वचन को दिया. So what the Father has done is, you may call him by all these names, but the word is even more higher than all these names. तो वचन इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के नामों को पुकार सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन नामों से ऊंचा स्थान, ऊंचा महत्व उसके वचन को दिया है. Now let's go to Hebrews chapter 4. हम जाएंगे इब्रानियों उसका 4था अध्याय And we'll read another very familiar verse. और एक बहुत फैमिलियर शब्द जो हम सबको पता है, वचन जो पता है, हम वो पढ़ेंगे. We'll read verse 12. इब्रानियों 4 उसका 12 हम पढ़ेंगे. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword,
piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है. Pay attention to the word of God is living and powerful. ध्यान दीजिए, वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्यशाली है. So just don't take your Bible, open a page and see, oh, these are the words of God. तो जब आप आपकी बाइबल को खोलते हैं तो ऐसा देख के आप केवल इतना मत कि ये कह रहे हैं हाँ ऐसे परमेश्वर के वचन है. That is not the word of God. वो परमेश्वर के वचन नहीं है. The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित है. The words printed on paper is not living. जो वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं, उस पन्ने पे लिखे हुए हैं, वो जीवित नहीं है. That's just on the page. वो केवल उस पन्ने पर लिखे हुए हैं. But the word of God is alive, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, powerful, सामर्थ्यशाली है, and it will do things in your life. और वो आपके जीवन में चीजों को करेगा. That word is Jesus. और वो वचन यीशु मसीह है. Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है. He is powerful. वो सामर्थ्यशाली है. He can change your life. वो आपके जीवन को बदल सकता है. So if you say that I have taken the Bible, I have read this verse today, that I have done something that I am supposed to do. तो अगर आप कहते हैं कि मैंने आज बाइबल लिया, मैंने उसमें वचन से पढ़ा और मुझे कुछ तो करना था, That is not sufficient. वो उतना केवल काफी नहीं है. Because the word is not what you have just read on paper. क्योंकि वचन केवल उस पन्ने में लिखा हुआ केवल उतना सीमित नहीं है. But the word of God is Jesus. लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है. So when we look at the word, when we open our Bibles and we read, तो जब हम हमारे बाइबल को खोलते हैं और उसमें से जब हम पढ़ते हैं, are we seeing Jesus? क्या हम उसमें यीशु को देखते हैं? Are you allowing Jesus to work in your life through that verse that you read? क्या हम उसको परवानगी दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो उसने उस वचन को लिखा है उसके द्वारा वो काम करे? Because Jesus will take what you have received and he'll use it in your life. तो यीशु मसीह क्या करेगा? जो आपको मिला है उसका इस्तेमाल करके आपके जीवन में वो काम करेगा. So I'll give you two examples. One person takes the Bible and reads the word. मैं आपको दो उदाहरण दूंगा. एक मनुष्य है जो बाइबल लेता है और उसमें से पढ़ता है. And he reads it, memorizes it and thinks about it and then closes his Bible and goes back to his work. और वो क्या करता है कि वचन लेता है, उसमें से बाइबल लेता है, बाइबल में से वचन पढ़ता है, उसको वो याद करता है, बाइबल बंद करता है और अपने काम पर चला जाता है. This may not even benefit the person. ऐसा करने के द्वारा उस मनुष्य का फायदा हो सकता है कि ना हो. Because you may have memorized the word but you are not using it. उस मनुष्य ने क्या किया? उसने वचन को पढ़ा, उसको याद किया और वो अपने काम पे चला गया. But another person opens the Bible. लेकिन एक दूसरा मनुष्य है, वो उसके बाइबल को खोलता है, He reads the word. वो उस वचन में से पढ़ता है, He reflects upon what's that about Jesus. और वो देखता है कि उसमें यीशु के विषय में क्या लिखा है, उस पे वो मनन करता है, उस पे सोचता है. How this word will become alive inside of me. वो ये देखता है कि ये वचन मेरे जीवन में जीवित कैसे हो सकता है. In other words, he's saying, how will Jesus become alive inside of me? तो उसका मतलब यह है कि वो देखता है कि ये वचन मेरे अंदर यीशु मसीह के रूप में कैसे जीवित हो सकता है. And then he's not just happy with that. और उसमें केवल वो खुश, इतने में केवल वो खुश नहीं होता. He wants to apply it in his life and share it with others. वो क्या करता है कि वो वचन अपने खुद के जीवन में लागू करता है और वो चाहता है कि मैं ये वचन दूसरों के साथ बांटूं. He has received a revelation from God about that verse. उसने उस वचन के लिए परमेश्वर से उसको प्रकाशन मिला. And that is how Jesus is able to work in that person's life. और इस प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह उसके जीवन में काम कर सक रहा है. I once talked about, there was a man in US who had memorized the whole Bible. मैंने एक बार बात किया था जहाँ पर एक यूएस में कोई मनुष्य है जिसने पूरी बाइबल को उसने याद कर लिया. And he used to challenge anybody saying, give me a chapter and a verse and I will tell you what it is. और वो क्या करता था कि लोगों को चैलेंज करता था, बोलता था कि तुम मुझे बताओ कि कोई वचन लो और बताओ कि कहाँ कहाँ लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कि वो वचन बाइबल में कहाँ कौन से इसमें लिखा है. So you could quote any book, chapter number, verse and he would say this is the content of it.
और वो क्या करता था कि लोगों को चुनौती देता था कि तुम मुझे बताओ, कोई बाइबल की बुक लो, कोई उसमें से अध्याय लो, कोई वचन लो, और मैं तुमको बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा है। But he never meditated on what he read. लेकिन उस मनुष्य ने उस वचन पर, उसके ऊपर उसने मनन कभी नहीं किया। So he never really got a revelation of the word of God. तो इसीलिए उसको परमेश्वर के वचन का कभी भी प्रकाशन नहीं मिला। So in spite of memorizing the whole Bible, it was of no use to him. भले ही उसने बाइबल को पूरा याद कर लिया, रट्टा मार लिया, फिर भी उसको उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। So that is what can happen when you only memorize it just because you have to remember it. तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता अगर आप बाइबल को रट्टा मारने के लिए, केवल याद करने के लिए आप पढ़ रहे हो। I'm not saying memorizing is bad. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट्टा मारना है, बाइबल को, वचन को याद करना ये बुरा है। I'm saying you do it, but do it with revelation. मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कीजिए, लेकिन उसके साथ प्रकाशन को भी आप लीजिए। Because the revelation is more important than you are remembering the exact chapter number, verse number. क्योंकि उस वचन का प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कि आप वो वचन कहाँ लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है, उसको याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस वचन का आपको प्रकाशन मिले। You know, in Jesus' time there were no chapter numbers and verse numbers. देखिए, यीशु के समय में चैप्टर्स यानी अध्याय कौन सा है और वर्ष का कितना नंबर है वो नहीं था। There were scrolls that were there for the वहाँ word, पर स्क्रोल्स थे, for all scripture. सारे वचनों के लिए स्क्रोल्स थे। So the whole Old Testament were present in scrolls. तो जो पुराना नियम है, पूरा का पूरा पुराना नियम, वो स्क्रोल्स के रूप में यीशु मसीह के समय में था। So like if you talk about the book of Isaiah, there was one scroll of the entire Isaiah written on it. तो जैसे हम अभी यशायाह की पुस्तक देखते हैं, तो यीशु मसीह के समय में पूरी की पूरी यशायाह की पुस्तक एक स्क्रोल के रूप में वहाँ पर थी। So what they had to do is they had to open those scrolls. तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि वो स्क्रोल को उनको खोलना पड़ता था। So that's what Jesus did when he entered into the temple and he opened the scroll to the point where Isaiah mentioned about him. तो जब यीशु मसीह मंदिर में गया तो उसने उस स्क्रोल को खोला, उसमें से यशायाह का जो किताब है उसमें उस जगह जहाँ पर लिखा गया था जो यीशु मसीह के विषय में कहता है। It was not easy because there were no chapter numbers and verse numbers. तो ये बहुत कठिन था कि इतने बड़े स्क्रोल में यीशु मसीह को वो वचन पे आना जहाँ पर वो वचन यीशु मसीह के विषय में कहता है, वो उस पे आना और उसको पढ़ना। But the Bible says that Jesus found the place where it is written about him and he spoke that verse. और वचन कहता है कि यीशु मसीह उस जगह पर गए जहाँ पर यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ था। And after reading it in the end he said that this is fulfilled today in your hearing. और जब यीशु मसीह ने वो पढ़ा, उसने कहा कि आज तुम्हारे मध्य में ये पूर्ण हुआ है। Okay, so that's where the word has the content of everything that you need for your life. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में आपके जीवन के लिए जो चाहिए वो सारी चीज लिखी हुई है। But just reading it or even memorizing it is not sufficient. लेकिन उसको केवल पढ़ना या फिर याद करना या फिर रट्टा मारना केवल उतना काफी नहीं है। You need to have a revelation of that word. हमको उसके वचन का प्रकाशन होना चाहिए। Because of revelation you will be able to correctly apply it into your life. प्रकाशन के द्वारा सही तौर से, सही मायने में उस वचन को आप आपके जीवन पे लागू कर पाओगे। So that's more important than just remembering the verse. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हो, आपको या वचन को याद करने से या रट्टा मारने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। We might come back to this verse 1 Corinthians 6:19-20 later on again. अच्छा, ओके। Let's go to John chapter 1 verse 1. हम जाएंगे यूहन्ना 1:1। It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. तो यहाँ कहता है कि यूहन्ना 1:1 यूहन्ना 1:1 वहाँ कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। I've taken this verse before also and said that this is talking about Jesus. तो मैंने पहले भी कहा कि जो वचन है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। So you can read it like this. तो आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको, In the beginning was Jesus,
कि आदि में यीशु मसीह था and Jesus was with the Father और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था and Jesus was God और यीशु मसीह परमेश्वर था। and he was in the beginning with God. That's verse 2. और वचन 2 कहता है कि और आदि में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और यही वचन जो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। Because the same chapter verse 14 says, और पहला इसी अध्याय में वचन 14 कहता है the word became flesh and dwelt among us. कि वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में उसने डेरा किया, हमारे मध्य में उसने वास किया। I've said this also before. In the Old Testament, the word Jesus was not known as Jesus. तो पुराने नियम में यीशु मसीह के नाम से जाना नहीं जाता था। The name was given to Mary that you shall call him Jesus when he was born in the flesh. लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब परमेश्वर ने मरियम से कहा कि उसको तू यीशु करके पुकारना। But before that he was known as the Word. लेकिन यीशु के जन्म होने से पहले उसको वचन के रूप में जाना जाता था। That is why John first verse, chapter first verse is, in the beginning was the Word. इसीलिए यूहन्ना कहता है कि शुरुआत में आदि में वचन था। It doesn't say literally that in the beginning was Jesus. उसने इसलिए नहीं कहा कि पहले आदि में यीशु मसीह था, ऐसे उसने नहीं कहा। But the Word and Jesus is the same. लेकिन यीशु मसीह और वचन दोनों एक हैं। And Jesus got the name when he came in the flesh. और यीशु मसीह को यीशु ये नाम जब उन्होंने शरीर रूप में जन्म लिया तब उनको वो नाम मिला। So that's when we started calling the Word as Jesus. और तब हमने उस वचन को यीशु के नाम से कहकर पुकारना शुरू किया। And we saw that the Word became flesh. और हम देखते हैं कि उस वचन ने देह को धारण किया, शरीर को धारण किया। Let's go to 1 John chapter 1 हम जाएंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय and verse 1. उसका पहला वचन। Okay. So I think John likes to write the most important thing right in the first verse. और मुझे लगता है कि यूहन्ना सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे शुरुआत में लिखना पसंद करते थे। So he says that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. आमेन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन, उस जीवन के विषय में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। If you only look at the word as the printed letters on a page, अगर आप जो वचन है उसको आप ऐसा देखते हो कि आपके बाइबल के पन्नों पे वो प्रिंट किया हुआ है, you will just see them as written or printed words without any life. तो आप उसको ऐसा देखोगे कि ये केवल पन्ने में लिखा हुए शब्द है, उसमें कोई भी जीवन नहीं है। But when you see the word on the page of the Bible and when you see life in it, that's the word of life. लेकिन जब हम उस बाइबल में लिखे हुए वचन को देखते हैं कि इसमें जीवन है, तो वो सच में जीवन के विषय में कहता है। In verse 2 it says, the life was manifested and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. वचन 2 कहता है कि यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। So that life was manifested through Jesus. तो वो जो जीवन था, परमेश्वर का जीवन था, वो प्रकट हुआ यीशु मसीह के द्वारा। In the Old Testament the word was there, पुराने नियम में वचन था, but it was not manifested to them. लेकिन वो वचन उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। We are so blessed that the word got manifested. हम आशीषित है क्योंकि उसका वचन हम पर प्रकट हुआ है। Because there are people who have seen and bear witness and declare that this is the eternal life from the Father. क्योंकि कुछ लोग हैं जो गवाही देते हैं और बताते हैं कि ये वचन जो अनंत काल का जीवन है जिसमें वो हम पर प्रकट हुआ। Verse 3 says, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. वचन 3 कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
There are so many things in these verses that I will not be able to go into it deeply. बहुत सारी चीज़ें इन वचनों में है जिसके हम डीप में हम नहीं जा पाएंगे अभी. But I'll just say this thing, that the Lord's plan is that we have fellowship with Him. लेकिन केवल इतना कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की ये योजना है कि हम उसके साथ सहभागिता करें. And through this fellowship, we get introduced to eternal life. और उस सहभागिता के साथ हमें वो अनंत जीवन के बारे में पता चलता है. There is no eternal life without the Father and His Son Jesus. यीशु मसीह और पिता के बिना अनंत जीवन नहीं है. We know that John 17:3 says that knowing the Father and knowing Jesus is what is eternal life. क्योंकि यूहन्ना 17 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता को और पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है. So without the Father and the Son, even if you know Jesus, it's not enough. बिना पिता के और बिना पुत्र के अगर आप केवल यीशु मसीह को जानते हो तो वो काफी नहीं है अनंत काल के जीवन के लिए. You need to have fellowship with them. हमको उसके साथ सहभागिता करने की जरूरत है. And how can you have fellowship with the Father and the Son? और हम कैसे सहभागिता कर सकते हैं पिता के साथ में और उस वचन वो यीशु मसीह के साथ में? Only through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. So you see the Trinity come into action. हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर का त्रिएकता है वो कैसे काम करती है. So the Father, the Son and the Spirit, they are all together and they are one. तो पिता पुत्र और आत्मा है वो एक है. And through that we get eternal life. और उसके द्वारा हमको अनंत काल का जीवन मिलता है. So the unity of the Father, Son and the Holy Spirit brings us eternal life. तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जो त्रिएकता में की एकता है वो अनंत काल के जीवन को हमको देती है. Let's now go to Proverbs chapter 13. हम जाएंगे नीति वचन उसका 13 अध्याय And we'll go to verse 13. और हम 13 वचन पढ़ेंगे. He who despises the word will be destroyed, but he who fears the commandment will be rewarded. नीति वचन 13 उसका 13. जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है परंतु आज्ञा मानने वाले को अच्छा फल मिलता है. So if you are despising the word, you will be destroyed. तो यहाँ वचन हम पढ़ रहे हैं नीति वचन 13:13 में कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो उसका नाश हो जाता है. In this, I like to look at the message translation of the same verse. उसका मैसेज ट्रांसलेशन हम देखते हैं. It says, honor the word and be rewarded, despise the word and be destroyed. कि परमेश्वर के वचन का आदर करो तो तुम्हारा फायदा होगा और अगर तुम उसका अनादर करते हो उसको तुच्छ जानते हो तो तुम्हारा ही नाश होगा. So it's very simple. I like the message way of putting the same verse. Very simple. Honor the word, you will be rewarded. Dishonor the word or despise the word and you will be destroyed. तो वहाँ वो कहता है कि परमेश्वर के वचन का तुम आदर करो तो तुम इसका फल मिलेगा और अगर तुम उसका अनादर करते हो उसको तुच्छ जानते हो तो तुम्हारा नाश होगा. Now you know why the Bible says that death and life is in the power of your tongue. क्या अब हम समझ पा रहे हैं कि क्यों वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ में है. Because when you honor the word, you will be rewarded and that's life for you. क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो हमारा फायदा होता है क्योंकि वो हमारे लिए जीवन है. But if you despise the word, you will be destroyed. That's death for you. लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं उसको तुच्छ जानते हैं तो हमारा नाश होगा जिसका मतलब है कि वो मृत्यु है. Let's move to Isaiah chapter 40. हम जाएंगे यशायाह उसका 40. We'll read verse 8. हम पढ़ेंगे वचन 8. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. यशायाह 40 उसका 8. घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा. That means that the word will never fail. Never means never. उसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होगा. It will not pass away. वो कभी भी टलेगा नहीं. Heaven and earth will pass away, but the word will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा. The word of God endures forever. परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए बना रहता है. So you can trust the word of God.
तो आप परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा कर सकते हैं। With all your life, you can trust the word. आपके पूरे जीवन के द्वारा आप उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं। And even if there comes a situation where you have to die for the word, die for the word, I would say. अगर परिस्थिति आती है जहां पर आपको परमेश्वर के वचन के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उसका सामना कीजिए। Which is why the early Christians, they were martyrs, because they valued and they honored the word so much. इसलिए जो शुरुआत के जो विश्वासी थे, जो मसीही थे, उन्होंने परमेश्वर का इतना आदर किया कि वो परमेश्वर के वचन के लिए वो शहीद हो गए। They had a choice. They could even live if they wanted to live. They had to just reject Jesus and they would live. उनके पास वो चॉइस थी कि अगर उनको जीना था तो वो परमेश्वर के वचन का अनादर करके जी सकते थे। But they chose Jesus and they chose death. लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को चुना और उन्होंने मृत्यु को चुना। Why? Because they honored God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आदर किया, They honored His word. उन्होंने उसके वचन का आदर किया। And that's why they chose it's better to die than to dishonor God. इसलिए उन्होंने चुना कि ये बेहतर है कि हम मरे लेकिन परमेश्वर के वचन का हम अनादर नहीं करेंगे। So now we'll try to look at also the role of the Holy Spirit. अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का काम कैसा है इसमें। Let's go to Acts chapter 5. हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, And we'll go to verse 3 and 4. हम देखेंगे इसमें 3रा और 4था। Now this is talking about, I don't want to explain the situation because you know this, and this is talking about Ananias and Sapphira, but we'll just read these two verses. तो यहाँ पर हनन्या और सफीरा उसके विषय में लिखा गया है पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तो हम 3रा 4था ही पढ़ेंगे। But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. प्रेरितों के काम 5 उसका 3 और 4 हम पढ़ रहे हैं। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। So you see that Ananias had lied to Peter and to the people over there. तो हम देखते हैं कि यह हनन्या ने पतरस और वहाँ पर जो लोग खड़े थे, वहाँ पर जो लोग थे, उनके सामने उसने झूठ बोला। He didn't reveal the exact amount he had sold that land for. उसने कितने में वो जमीन को बेचा, उसने वो कीमत उसने उनको नहीं बताई। Instead, he gave a different amount from what he got from the land, and he gave a different amount to the people. तो उसको जिस कीमत में उसने वो जगह को बेचा था, वो उसने सही कीमत न बताते कुछ और कीमत, पतरस उसके साथ में जो लोग थे उसको उसने गलत कीमत बताई। And he kept back some of that amount for himself. और उसने क्या किया कि वो उस कीमत में से कुछ पैसे थे उसने खुद के लिए उसने रख छोड़े। Now you might think that wasn't this his choice? He wanted to keep something for himself. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि क्या उसका ये चॉइस उसके पास नहीं होती कि उसको कितना पैसा देना चाहिए और कितना पैसा खुद के पास रखना चाहिए, ये उसकी चॉइस थी। Like when we tithe today, we decide how much we want to give, right? लेकिन जैसे अगर हम देखते हैं कि आज जब हम दशमांश देते हैं तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना दशमांश दें और कितना पैसा खुद के पास रखें। We may want to give 10%, 20% or even 5%. हो सकता है कि आप 10% दो, 20% दो या 5% दो उस दशमांश को। And if we do that, God is not going to kill us. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको मारने नहीं वाला। But why did Ananias and Sapphira, why did they have to die? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हनन्या और सफीरा को क्यों मरना पड़ा? Because they were doing something dangerous. क्योंकि वो बहुत खतरनाक ऐसी चीज यहाँ कर रहे थे। This was the time of the beginning of the church. ये कलीसिया के शुरुआत के समय की बातें हैं। And when you are starting things off, this is very important for those who are even starting businesses. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुरुआत के विषय में दिखाता है, और जो कुछ नया व्यवसाय कुछ बिजनेस को शुरू कर रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। So when you are starting something off, you are laying the foundation. जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप उस आधार स्तंभ को आप बना रहे हो। Now when you are talking about construction of a building, जब हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के विषय में बात करते हैं, we know very well that the foundation has to be strong.
तो हम जानते हैं कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। What happens if the foundation is not strong? अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो क्या होता है? The building will topple and fall or crash anytime. वो बिल्डिंग है वो हिल सकती है और वो गिर सकती है। So it's very important that we pay our full attention to the foundation and establish it securely. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस नींव को बनाते हुए ध्यान दें कि वो काफी मजबूत हो। That's why when the church was just being founded, और इसीलिए जब कलीसिया की स्थापना हो रही थी there was a need for full commitment. तो पूरी तरह से कमिटमेंट की जरूरत थी। Even when you are starting a business, there is a need for a full commitment from your side. और वैसे जब कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पूरे तरह से कमिटमेंट की जरूरत वहाँ होती है। Now I can understand when somebody is still working in a job and is thinking of a business, they need to give time to their job and they need to give time to their business. हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि अगर कोई उनका जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसके साथ में उनको बिजनेस को शुरुआत भी करनी है तो वो पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनको उनके जॉब पर भी, उनके काम के जगह पर भी उनको समय देना है। So maybe time cannot be fully committed to your business. तो उस केस में आपका जो पूरा समय है आप पूरी तरह से आपके बिजनेस पर नहीं दे सकते हो। But when you are establishing your business, you make sure that every little thing that matters is being given full attention. लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको आपके बिजनेस को लगने वाले हर एक छोटी चीज के विषय में आप देख रहे हो। Now this does not need to be toiling. ये कठोर परिश्रम करना नहीं होगा because the Holy Spirit is there to help us. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मदद करने के लिए वहां पर है। In fact, a lot of businesses have been established through the Holy Spirit's help. क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो है, व्यवसाय है, वो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा शुरू हुए हैं। And in a supernatural way, people have just flowed and businesses have flourished. और अलौकिक तौर से लोगों को बिजनेस के आइडियाज मिले हैं और उन्होंने उनके व्यवसाय को, बिजनेस को शुरू किया। So you need your dependence on the Holy Spirit. तो हमें पूरी तरह से खुद को पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करना है। That is why it's even more important to honor the Holy Spirit. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा का भी आदर करें। And when we honor the Holy Spirit, He can work in our lives. और जब हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं तो वो हमारे जीवन में काम कर सकता है। But if we dishonor the Holy Spirit, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं, it's like you're not opening the door fully to the Holy Spirit. You're saying, sometimes I will open it, sometimes I will close it. तो आप क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह से हर काम के लिए पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शन करने का आप मौका नहीं दे रहे हो। आप कुछ समय पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हो, कुछ समय पवित्र आत्मा को मौका नहीं दे रहे हो। So like when Holy Spirit talks to you and say, I want you to do this. पवित्र आत्मा हो सकता है कि आपसे कभी बात करे और कहे कि मुझे चाहिए कि तुम ऐसा करो। And your initial response is, yes, Holy Spirit, I will do it. और आपने शुरुआत में जब आपने ये बात सुनी तो आप कहोगे कि हाँ पवित्र आत्मा मैं ऐसा करूँगा। But then you face opposition and then you say, no, I'm not going to do it. लेकिन आपको विरोध का सामना करना पड़ा और आप क्या करते हो कि नहीं पवित्र आत्मा मैं अभी ऐसा नहीं करने वाला। So you're not being obedient to the Holy Spirit. आप क्या कर रहे हो, ऐसा करते हो कि पवित्र आत्मा ने जो कहा उसका आज्ञा पालन आप नहीं कर रहे हो। So even disobedience is dishonor to the Holy Spirit. और आज्ञा न मानना भी पवित्र आत्मा का अनादर करने के समान है। We need to depend on the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करना है। Why? क्यों? Let's go to John chapter 14. हम जाएंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय। Let's go to chapter 16 first. अच्छा सॉरी, हम जाएंगे पहले 16वें अध्याय पर, यूहन्ना 16। And we'll go to verse 13. हम जाएंगे वचन 13। It says, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. आमेन। यूहन्ना 16 उसका 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Would you not like to know what are the things that are to come? क्या हमको नहीं चाहिए कि हम आने वाली चीजें क्या है वो हम पहले से जान ले? Let's continue with our topic of business. Suppose if you're establishing a business,
हम हमारे व्यवसाय के उदाहरण को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि हम कोई व्यवसाय शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, and you are able to see what is going to happen with this business. और आपको पहले से पता है कि इस बिजनेस के साथ में भविष्य में क्या होने वाला है। You are going to see what are the areas where people can make you compromise. और आप देख पाओगे कि इस बिजनेस के किस क्षेत्र में लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहेंगे, And how you can prepare for that so that you don't compromise. और आप पहले से उसकी तैयारी करोगे कि जिसके द्वारा जब वो क्षण आएगा तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। So wouldn't this information be valuable to you now? तो ये जो चीज़ है क्या आपका फायदा की नहीं होगी कि आपको पहले से पता है कि क्या होने वाला है। And that is what the Holy Spirit can do with you. और ये चीज़ पवित्र आत्मा आपके साथ कर सकते हैं। He will guide you into all truth. वो आपको सारी सत्य के ऊपर विषय में आपको सिखाएगा। He will show you things to come. वो आपको दिखाएगा कि आने वाली चीज़ें क्या है, वो तुमको दिखाएगा। And you will be edified and you will be strengthened by it. और आपकी उन्नति होगी और आपको सामर्थ्य मिलेगी। Now let's go to John chapter 14. अब हम जाएंगे यूहन्ना उसका 14, We'll go to verse 26. हम जाएंगे वचन 26। He says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things I said to you." यूहन्ना 14 उसका 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। So he will teach you all things. वो तुम्हें सब सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब सिखाएगा। So let's say you're starting your business and you don't know many things. और कल्पना कीजिए कि आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो और आपको कुछ नहीं पता, So you will need to learn them, right? तो आपको उस बिजनेस के विषय में चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। The Holy Spirit will make things possible for you to get connected to the right people. Amen. And that you will learn all these things. आमेन। तो पवित्र आत्मा आपसे ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट कराएगा कि जो उसको जिनको वो सारी चीज़ें पता है और उनके द्वारा आप आपके बिजनेस के विषय में चीज़ों को सीखोगे। There are things that you may not have even imagined. I will need to learn this. I will need to learn that. आपको चीज़ें हो सकता है नहीं पता हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है। The other day, Brother Sam was just sharing with me that as he started with his new business thing, there were many things he did not know. तो भाई सैम भाई डिलॉन से शेयर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जब उन्होंने कुछ नई शुरुआत की बिजनेस की तो उनको चीज़ें नहीं पता थी कि ये चीज़ें कैसे करनी है। And God somehow made his eyes open to how he can learn it, like what trainings he can take and how he can accomplish those things. और परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और उनको बताया कि कौन सी ट्रेनिंग तुमको करने की ज़रूरत है, कैसे तुमको ये करने की ज़रूरत है। And that's exactly what we all need in our lives. और यही चीज़ हमें हमारे जीवन में चाहिए। Because you will not know what you will need to know 5 years from now. क्योंकि हमको नहीं पता कि 5 साल बाद में जो होने वाली चीज़ें उसके लिए हमको क्या चाहिए। But if the Holy Spirit shows that to you, then you can start preparing for it from today. आमीन। अगर आपको पवित्र आत्मा 5 साल बाद होने वाली चीज़ों को अभी से आपको बताए तो आप उसकी पहले से ही तैयारी कर सकते हो। And that way you will be equipped for what you are doing. और इसके द्वारा आपको आप उस सारी चीज़ों से लैस हो जाओगे जो आपको 5 साल बाद के लिए चाहिए, वो आपको अभी से आप उसकी तैयारी कर चुके होगे। Not only will he teach you, वो केवल आपको सिखाएगा नहीं, but he will also bring to your remembrance all the things that he has spoken to you. लेकिन वो सारी चीज़ें जो यीशु मसीह ने कही है वो आपको याद दिलाएगा। So let's talk about your normal life. तो हम आपके जीवन के विषय में बात करते हैं। There are many areas where we struggle. आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। Now as you read the word, you start getting revelation of the word. और जैसे हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन का प्रकाशन हमें मिल रहा है। Now we know that the Bible is big and there are lots of books and lots of chapters and lots of verses. और हम जानते हैं कि बाइबल बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सारे वचन हैं। We don't need to be like that US man who memorized the whole Bible. हमें उस यूएस के उस आदमी के समान नहीं बनना है जिसने पूरी बाइबल को रट्टा मार लिया। We can rely on the Holy Spirit to bring the exact verse or word that you need at that moment. आमीन। तो आप पवित्र आत्मा पर आप भरोसा कर सकते हो, निर्भर कर सकते हो कि जिस क्षण में आपको ज़रूरत है उस क्षण में पवित्र आत्मा सही वचन को आपको याद दिलाएंगे।
And God and Holy Spirit will point you to that exact thing that you need to know from God's word. और पवित्र आत्मा वो सही वचन जिसकी आपको जरूरत है वो आपको दिखाएंगे. So you do not need to think of, I need to have a great memory if I want God's word to work in my life. Sorry. You don't need to think that I need to have a really huge memory Okay. to remember all the things of word of तो God. आपको परमेश्वर के वचन को याद रखने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत अच्छी याददाश्त होने की जरूरत नहीं है. Because this becomes effortless with the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा बिना किसी बहुत बड़े काम के आप परमेश्वर के वचन को याद कर सकते हो. I remember when I had returned back from Bible college, मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज से वापस आया I made it a mission for myself तो मैंने खुद के लिए ये निश्चय किया था that I'm going to start trying to remember each and every verse that I feel has touched my heart. तो मैंने ये निश्चय किया था कि जो कुछ वचन ने मेरे दिल को छुआ है तो वो वचन मैं याद करूंगा. मैं ऐसा सोच रहा था. So what I started doing is I took colored pieces of paper मैंने क्या किया कि मैंने जो पेज है उस कलरफुल पेजेस को मैंने लिया and different colors, different papers. I cut them into different shapes. मैंने क्या किया कि बहुत सारे पेजेस को लिया, बहुत अलग अलग कलर के पेजेस को लिया और मैंने अलग अलग शेप में उनको मैंने काटा. And I started writing down all the verses that touched me. और उनके ऊपर मैंने वो हर एक वचन जिसने मुझे छुआ है वो मैंने लिखना शुरू किया. And I started sticking them on the walls. और उन जो वचनों को मैंने दीवार पर चिपकाना शुरू किया. Because I said that whenever I go to this room, I should see what word is there, read that, remember it, memorize it, and keep it in my head. और मैं इससे द्वारा क्या करता था कि मैं जब कभी रूम में जाऊंगा तो मैं उस वचन को देखूंगा, मैं उसको याद करूंगा और मेरे साथ वो रहेगा. I took the Bible and I started highlighting in different colors, different verses that touched me. और मैंने क्या किया कि मैंने बाइबल को लिया और अलग अलग कलर के पेन के द्वारा मैंने बाइबल में उन वचनों को हाईलाइट करना शुरू किया. And I kept the Bible in my toilet. और मैंने मेरे बाइबल को टॉयलेट में रखा. Why? Because at that time when I go to the toilet, I'm making use of the time that I'm sitting over there. कि जब मैं टॉयलेट में जाऊँ तो मैं उस जो समय है उसका मैं उपयोग करूँ. Now some of you might get offended. Why is the Bible in the toilet? तो आपको में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि बाइबल को टॉयलेट में क्यों रखा. But to me it was I was honoring the word. So I want the word to be with me everywhere I go. लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के वचन का आदर करना है क्योंकि मुझे चाहिए ताकि जहाँ कहीं मैं जाऊँ परमेश्वर का वचन मेरे साथ रहे. So I had a shelf in the toilet and I used to keep my Bible over there. तो मेरे टॉयलेट में मैंने एक शेल्फ को अलमारी को रखा था जिसमें मैं बाइबल को रखता था. And whenever I was there, I would take the Bible and I would look for the colored highlightings and start reading them. और जब कभी मैं जाता तो मैं अलग अलग कलर के पेन को देखता, हाइलाइटर को देखता कि जिसके द्वारा जब मैं पढूं तो मैं उसको हाईलाइट करूं. And then also in my phone I always have the Bible. और मेरे फ़ोन में हमेशा मैंने बाइबल को रखा. And I started bookmarking those verses which I liked. और मैंने वो सारे वचन जो मुझे पसंद आ रहे थे मैंने उनको हाईलाइट करना, बुकमार्क करना शुरू किया. So for 1 to 2 years I was in this mode. और 1 से 2 साल तक ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था. When suddenly I heard a voice. जब उसके बाद जब मैंने अचानक परमेश्वर की आवाज़ को सुना that said stop doing this. कि ये ऐसा करना तू बंद कर. And I was wondering why will God tell me to stop doing this? और मैं सोचता था कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है कि ये तो अच्छी चीज़ है मैं कि इसको तू बंद कर, ऐसा परमेश्वर क्यों कहेगा. Then God said to me, I want you to rely on me. तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझ पर निर्भर करे. I don't want your memory to become so enormous that you get filled with pride. मैं नहीं चाहता कि तेरी जो याददाश्त है वचनों से इतनी भर जाए कि तू घमंड से भर जाए. Because a lot of people do that and they get filled with pride because they know every verse. क्योंकि बहुत सारे लोग वचन को याद करके उसको रट्टा मार के उनको वो घमंड से भर जाते हैं. And that was a possibility for me. I would have known every verse and then I would have just started challenging people, or I would have just started looking down on people if you don't know this verse. तो अगर मैं ऐसा करते रहता तो हो सकता था कि मैं भी उस घमंड से भर जाता और लोगों को मैं चैलेंज करना शुरुआत करता कि मुझे पता है कहाँ लिखा है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें. So I didn't want that. I definitely saw that danger. और मैं नहीं चाहता था कि वैसा हो, मैंने वो खतरे को देख लिया था. So I stopped putting everywhere the verses on my wall. और मैंने क्या किया कि जो मैं वचन को लिख के दीवार पर चिपकाता था उसको मैंने बंद कर दिया.
And I started talking to the Holy Spirit. और मैंने पवित्र आत्मा से बात करना शुरू किया. I said, Holy Spirit, there are so many verses. It's actually going to tire me if I'm going to try to remember each and every verse. मैंने कहा पवित्र आत्मा इतने सारे वचन हैं, अगर मैं वो याद करते रहूं तो मैं थक जाऊंगा. And I don't want to be weary of your word. और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके वचन के द्वारा मैं थक जाऊं. So today I choose to depend on you, Holy Spirit. You will remind me the word and I will use that word in my life. और इसलिए पवित्र आत्मा मैं आप पर निर्भर करना चाहता हूँ कि सही समय पर आप वचन को मुझे याद दिलाओगे. But the point that I'm trying to make is we need to honor the role of the Holy Spirit in our lives. लेकिन जो मैं इन सारी चीज़ों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें पवित्र आत्मा का जो काम है वचन के लिए उसको समझने की ज़रूरत है. And when the Bible says that He will bring to your remembrance all things I said to you, then I need to honor that as well. तो यहाँ पर जब वचन कह रहा है कि यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा कही गई सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा. Let's go to Ephesians chapter 4. हम जाएंगे इफिसियोस का 4था अध्याय And we'll read verse 30. वचन 30 हम पढ़ेंगे. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. तो यहाँ कहता है इफिसियों 4 उसका 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. Let's keep this verse on our mind. इस वचन को हम याद रखेंगे. And also go to 1 Thessalonians chapter 5. और हम जाएंगे पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय And verse 19. वचन 19. It's one of the very small verses. It बहुत says, छोटा वचन है ये do not quench the spirit. कि पवित्र आत्मा को न बुझाओ. When do we use the word quench? तो जो बुझाना है वो कब हम उसका इस्तेमाल करते हैं? Either when you are thirsty and your thirst gets satisfied, that is one use of it. कि अगर हम प्यासे हैं और प्यास को हम पानी पीकर हमारी प्यास को बुझाते हैं. Or if there is a flame and you are trying to remove that flame by throwing water on it. या फिर आग की कुछ लपटें हैं तो उन लपटों को बुझाने के लिए हम पानी या फिर कुछ चीज़ डाल के उनको बुझाते हैं. वो उसके विषय में कहता है बुझाना. So the Spirit has brought a flame in your being, inside your being. तो जो आत्मा है उसका कुछ एक काम है आपके जीवन के लिए, आपके लिए. When we dishonor the Holy Spirit, we are quenching that flame. We are pushing it off. तो जब हम पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं तो जो पवित्र आत्मा की जो आग है जो हमारे अंदर उसने दी है हम उसको बुझाते हैं. So it's like we are telling the Holy Spirit, I don't need you. I can do it on my own. तो इसका मतलब जब हम उसका अनादर कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा से कह रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ. And that's a way of grieving the Holy Spirit. और ये तरीका है पवित्र आत्मा का अनादर करना. Okay, you know the importance of the Holy Spirit, you know the value of it, but yet you are saying, no, I can do it on my own. इसका मतलब है कि आप जानते हो कि पवित्र आत्मा का महत्व क्या है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे पता है कि क्या करना है तो मैं खुद से जो है मैं वो खुद से करूँगा. So understand the role of the Holy Spirit in your life. तो ये जानिए कि पवित्र आत्मा का काम क्या है हमारे जीवन में. And honor the Holy Spirit. और उसका आदर कीजिए. Just like I mentioned, we need to honor the Father, we need to honor the Word, that is Jesus, so also we need to honor the Holy Spirit. तो जैसा हमने देखा कि हमको पिता का आदर करना है, हमको पुत्र जो यीशु मसीह है उसका आदर करना है और उसके साथ ही हमको पवित्र आत्मा उसका भी आदर हमको करना है. Keeping these three in mind, this is how we can honor God. इन तीनों चीज़ों को याद रखते हुए जब हम करते हैं जैसा हमने कहा उसके द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं. Because remember, all the three are one. याद रखिए ये तीनों एक है. And if we dishonor any one of them, we are dishonoring God. और अगर हम तीनों में से किसी एक का भी अनादर कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं. So we need to have a lifestyle of honoring the Father, the Son and the Spirit. तो इसलिए हमारी ये जीवन शैली होना चाहिए जिसमें हम पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर करते जा रहे हैं लगातार. Let me just pray for you. हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, I thank you, Lord, for what your word reveals to me. पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपका वचन हम पर प्रकट करता है. I thank you for your Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए
that gives me understanding, revelation, and remembrance of all things you have said. जो मुझे प्रकाशन देता है और सारी चीज़ें जो आपने कही है वो मुझे याद दिलाता है। And I choose today to honor you. और हम आज ये चूज़ करते हैं कि हम आपका आदर करेंगे। I choose to reject the things that dishonor you. मैं सारी चीज़ें जो आपका अनादर करती है मैं उनको नकारता हूँ। And I will devote my life to honoring you. और मेरा जीवन मैं समर्पित करता हूँ कि मैं आपका आदर करूँगा। And through me honoring you, और मेरे आपको आदर करने के द्वारा may I be an example to others, कि मैं एक ऐसा उदाहरण बनूं बाकी लोगों के लिए, so that I teach others to honor you. कि जिसके द्वारा मैं लोगों को सिखाऊं कि आपका आदर कैसे करना चाहिए, How I can give you my full attention, कि किस प्रकार से पूरा मेरा ध्यान मैं आपको दूं, even if there are things that come in the way which are seeking my attention and demanding my time away from you. कि वो सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में उसके वो समय को मांग रही, मेरे ध्यान को मांग रही, उनको हटाकर मैं पूरा ध्यान आपको दूं। Give me the wisdom and courage to give full preference to you, Lord. मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं पूरा पहला ध्यान आपके ऊपर लगाऊं, And let me honor you every day of my life. और पूरी तरह से रोज़ मेरे जीवन के रोज़ में मैं आपको पूरा आदर दूं। I seek for this blessing in my life. ये आशीष को मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।